आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत तामीर किए जा रहे मकानात मियारी होने चाहिए, रियासती वजीर पी श्रीनिवास ने ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बंजारा हिल्स में गैर मजाज तौर पर कब्जा की गई सरकारी अराजी का किया मुआयना, फौरी इक़दामात करने ओहदेदारों को दी हिदायत। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी में मसरूफ। कालेश्वरम प्रोजेक्ट स्कैम के सिलसिले में हुनूस तहकीकात जारी, एसीबी ने साबिक चीफ इंजीनियर से की पूछताछ। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए हिदायत दी है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले मकानात मियारी होने चाहिए। उन्होंने जुमे के रोज़ चीफ सेक्रेटरी के हमरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर मुस्तहक़ीन की फहरिस्त तैयार करें और किसी भी पार्टी से मुस्तहक़ीन का ताल्लुक़ हो उन्हें मकान फराहम करने के इक़दाम करें, बिलखुसूस किसानों का ख़ास ख्याल रखा जाए। ఏదైతే ఈనాడు సెలక్షన్ జరుగుతుందో మీరు వెళ్ళేసరికి సెలక్షన్ లిస్ట్ రెడీగా ఉంటుందో సెలక్షన్ లిస్ట్లో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి తప్పు ఉందని చెప్పినా, ఈవెన్ కలెక్టర్ గారు అప్రూవ్ చేసినా దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేది అవుట్ రైట్ డెసిషన్ నేను తీసుకున్నా. ఎస్, ఏడిచ్చింది తప్పు ఉంది సార్, ఇతను భూమి ఉన్నోడు, ఇతను డబ్బులు ఉన్నోడు, ఇతనికి మనోళ్ళు ఏదో లోపాయకారి ఒప్పందం చేసుకొని ఇల్లు ఇచ్చారు అని ఒక నా చెల్లినో ఒక నా తమ్ముడో ఎస్ ఇక్కడ తప్పు జరిగిందని మీరు నాకు జస్ట్ మీకు నా డైరెక్ట్ ఒకటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు చిన్నది పాస్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ మీ పేరు కూడా బయట చెప్పను, నా సెక్రటరీ చెప్పినా, నా ఎండి చెప్పినా, నా ఈఎన్సీ చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా సరే డైరెక్ట్గానే నాది ఫోకస్ ఉంటుంది. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్, చిన్న అవినీతి కూడా జరగకుండా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే ఎంత దానికి మార్కెట్లో వెయిట్ ఉంటుందో అలాగా ఈ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఒక మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా सिटी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के हमरा शहर के कई इलाके जात का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल करने के अलावा जीएचएमसी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर आवाम के मसाइल की यकसोई करने के इक़दाम करें। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉగాది నుండి ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ ఎన్నికల కోడ్ ఉండడం వల్ల ఒక నెల ఆలస్యమై ఈరోజు హైదరాబాద్ మొత్తంగా 653 చౌకధర దుకాణాల ద్వారా రేషన్ సరఫరా అవుతోంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో నాగేంద్ర గారి నాయకత్వంలో మేయర్ గారు కార్పొరేటర్లు ఈరోజు ఒక దళిత కుటుంబంలో వాళ్ళ ఆహ్వానం మేరకు భోజనం చేసినాం. చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎక్కడ నిన్న సన్నబియ్యానికి సంబంధించి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఈ సన్నబియ్యం కార్యక్రమాన్ని 100% ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ సన్నబియ్యం ఉపయోగించుకున్న వారందరికీ అభినందనలు. ప్రభుత్వం ఉదయాన్నే ఎక్కడ కూడా సన్నబియ్యం పంపిణీలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావద్దనే నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. భవిష్యత్తులో కూడా సన్నబియ్యం సరఫరా విషయంలో ఈ అంశాన్ని ప్రజలంతా వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ और तेलंगाना की हुकूमत कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम को रूब अमल लाने में नाकाम है, क्योंकि कई मजदूर तबके के अफराद इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि काम के दिनों में कमी कर देने की वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हरीश राव ने मरकज़ और रियासत से मुतालबा किया कि वो कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम को रूब अमल लाएँ।
ఇది ఎంత రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఎట్లుంటుందంటే ఏ పని చేసినా సగం సగం ఆగమాగం, ఏది పురాగా కొనేది. రుణమాఫీ సగం కూడా కాలే, రైతు బంధు పావుల వల్లే, మూసి ముట్టుకొని దాన్ని వదిలిపెట్టిండ్రు, హైడ్రా ముట్టుకొని చేతులు కాల్చుకొని దాన్ని ఇడిచిపెట్టిండ్రు. ఏది చూసినా సగం సగం ఆగమాగం. ఈ చంద్రబాబు రాజశేఖర రెడ్డి పుణ్యం దశాబ్దాల తరబడి పాలమూరు జిల్లాలో ప్రాజెక్టులు పేరు మారిపోయింది. దాని ఎవడు కల్వకుర్తి, నెట్టంపాడు, భీమా, కోయిల్ సాగర్ అంటలేరుగా, వాటి పేరే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు. ఆ పేరు ఎవరు తెచ్చిండ్రు? ఇదే ఘనత వహించిన కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశంలో పుణ్యం. ప్రాజెక్టుల పేరు మర్చిపోయినరు. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని పాదయాత్ర, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని నిరాహార దీక్ష. ఈ ఎన్నికల్లో మేము గెలిస్తే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామనే కాడికి వచ్చింది కథ. ఆ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను నిరంజన్ అన్న ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ గా, లక్ష్మారెడ్డి గారు మంత్రిగా, నేను నీటిపారుదల మంత్రిగా ప్రాజెక్టు సైట్ల దగ్గర నేల మీద జంప్కాన్ వేసుకొని పండుకున్నాం. మేము ఆడ పనిచేసినాం. పరుపులు వేసుకోలే, మంచాలు వేసుకోలే, మేము జంప్కాన్ వేసుకొని మేము सेक्शन ऑफिसर डिवीजन 14 नरेश पर बीजेपी कॉरपोरेटर राकेश की जानिब से हमला करने की कोशिश और सेक्शन ऑफिसर को गाली गलौज करने के खिलाफ डिवीजन 14 के जीएचएमसी अहदेदारों ने धरना देते हुए उस वक्त तक काम रोकने का फैसला किया है जब तक बीजेपी कॉरपोरेटर सेक्शन ऑफिसर से माजरत ख्वाही नहीं करते। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर आर.वी. कर्नल ने हफ्ते की सुबह शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर के दूसरे मरहले के कामों का मुआयना किया। शेरलिंगमपल्ली जोन मलगम चेरू गच्चीबौली से कोंडापुर तक ये फ्लाईओवर का काम हो रहा है। कमिश्नर बल्दिया ने फ्लाईओवर के अलावा अंडरपास के काम का भी मुआयना किया। मुकामी चहलकदमी करने वालों के ने मलकम चेरू झील की सफाई और कुत्तों की कसरत से मुताल्लिक़ कमिश्नर बल्दिया को तवज्जो दिलाई। तालाब में पानी के दाखिले को रोकने के सिलसिले में भी कमिश्नर बल्दिया ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने बल्लागुड़ा मंडल के तहत मंजूरा 18 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 58,02,088 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंगान का ताल्लुक़ नशेमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर और अलीआबाद से बताया गया है। इस मौके पर कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। खुदपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बंडलागुड़ा मंडल के शादी मुबारक के 18 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसकी लागत हो रही 18,02,088 रुपये। टोटल 18 चेक्स 18,02,088 रुपीज़ के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। जो एरिया आ रहे हैं
वो नशेमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अलियाबाद, ये तमाम एरिया जो बंडलागुड़ा मंडल में आते थे उसके चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मेरे साथ में मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना मौजूद है। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती है आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है। उसी के सिलसिले के अंदर हमने पहले सैदाबाद मंडल के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए, उसके बाद चार मीनार मंडल के, आज बंडलागुड़ा मंडल के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरे और चेक्स भी जो आ जाएंगे साथ के साथ बुलाकर शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी हो जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। मैं बंडलागुड़ा मंडल के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी मसाइल की यकसोई के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने दबिलपुरा डिवीज़न में अवामी शिकायत का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वो लेवल आप लोगों का पाइप नीचे है, अगर आगे ऐसा ऊपर उठ रहा है ऐसा है तो वो लेवल में वहाँ पे मिलता है पाइप के ऊपर अगर आया तो ऊपर से आता, नहीं तो नीचे से तो यहाँ तो ऊपर से आता, अगर आया तो सेक्शन बना दे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आजमपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने आज़ा स्कूल के पास 3 लाख रुपये MLA फंड से जारी SW ड्रेन के कामों का मुआयना किया। कामों की तकमील से मुताल्लिक़ रुकन असम्बली की हिदायत से भी ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया। बीच में देना है साहब, यहाँ बीच में एक वहाँ फिर उसके अंदर देना है। प्रॉब्लम ही नहीं आता, अगर प्रॉब्लम भी आया तो लेबर आया तो कर दे तो हो जाता। फिर इधर काम नहीं आ रहा बल्कि पाइप उधर यूज कर ले रहे बस। प्रॉब्लम सॉल्व होता छोटे वहाँ बड़े बड़े यहाँ शाम तक ही आ रहा था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हल्के में मंजूरा शादी मुबारक के चेक से जुमला मालियती 4 करोड़ 25 लाख रुपये से ज़ायद मालियती चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
सदर मजलिस और पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर पहलगाम दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए हुकूमत पर जिम्मेदारों के खिलाफ बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। बिहार के बहादुरगंज में जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मासूम अफराद के कत्ल को इंसानियत के खिलाफ करार दिया। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ भी बैरिस्टर अवैसी ने नीतीश कुमार चिराग पासवान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये कानून जानबूझकर मुसलमानों पर मुसल्लत किया जा रहा है, लेकिन इस कानून के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि ये कानून वापस होगा। ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्फ कानून के खिलाफ है। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। यह कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। यह कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? यह कानून यह कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून यह कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गाया है, बोध गाया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं, तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है मेरचल खुतबुल्लापुर
गाजुला रामम HAL कॉलोनी में महकमे मॉल की तरफ से गैर मिजाज तामीरात को मुनद्दिम किया गया है। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मुतासिरीन ने कहा कि उनके मकानात को मुनद्दिम किए जाने से उनके पास दूसरा कोई आसरा नहीं है। मुतासिरीन ने मुतबादिल फराहम करने का मुतालबा किया। అడుగుతున్నారు సార్ లోకల్ రాజకీయ నాయకులు గుడి అప్పచెప్పేయమంటున్నారు సార్ రాజకీయ నాయకులు సార్ మాకు చిన్న చిన్న మాకు సపోర్ట్ చేస్తలేరు చిన్న చిన్న వాళ్ళ పేర్లు కావాలంట ఈడ ఇల్లులు కూల కొట్టుకొని ఈ రోజు నా పేరు పెట్టలేదండి మీ కమిటీలో నా పేరు పెట్టలేదండి అన్ని రాజకీయం ఆడి ఇవన్నీ అటాక్ చేసింది సార్ రాజకీయ నాయకులు ఇది ధార్మికంగా నడవాలి సార్ మాకు పర్మిషన్ సరికోండి ఈ బిల్డింగ్ కట్టి ఈ మొత్తం బర్మలు పెట్టి బర్మలు పెట్టి కూలిపోయినాయి సార్ గోడలు కూలిపోయినందుకు పాత గోడలు సార్ సార్ ఇంకోటి చూపిస్తా సార్ ఇదిగోండి సార్ పాత ఇల్లే సార్ ఇది పాత ఇంట్లో సెల్ఫ్లు అట్లనే ఉన్నాయి పాత ఇల్లు ఈడు రాకుండా సార్ గులగొట్టినాం ఈ ఇంటిని మొత్తం ఇట్లున్నా ఇంటిని మొత్తం పిఐకి కాళ్ళు మొక్కి అడిగిన పాత ఇల్లు కూల్చి కడుతున్నా పిల్లల పైన భరోసా వేసుకోవద్దని దుకాణం పెట్టుకుని కొబ్బరికాయలు అమ్ముకుంటుంటే ఆ కొబ్బరికాయల దుకాణం కూడా ఎరగొట్టాయి అన్ని ఖరాబ్ చేసి సార్ మాకు ఒక్క రూపాయి గిట లాభం కాలే అన్ని ఖరాబ్ చేసి మాకు కొబ్బరికాయలు నీళ్ళు అమ్మే దుకాణం కూడా కొట్టింది సార్ मरकजी वजीर और बीजेपी के तेलंगाना सदर नशीन किशन रेड्डी ने कहा है कि इस 10 साल के दौरान 3000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गई हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि 10 साल के दौरान तेलंगाना में कौमी शाहराहों की गैर मामूली तरक्की हुई है। 5 मई को मरकजी वजीर नितिन गडकरी तेलंगाना का दौरा करेंगे और तकरीबन 7000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। तेलंगाना स्टेट में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में लास्ट 10 ईयर से 10 साल से नेशनल हाईवेज रोड्स का डेवलपमेंटल एक्टिविटी बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहे। आजाद से लेके 2014 तक तेलंगाना में 2500 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे रोड थे, मगर आज इस 10 साल में लगातार 3000 किलोमीटर का रोड, नया रोड तेलंगाना में जोड़ा है। तेलंगाना में लगभग 33 नेशनल हाईवेज है, तो पूरे हर जिला 33 डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवेज के साथ नया डिस्ट्रिक्ट आने के बाद भी नेशनल हाईवेज के साथ नरेंद्र मोदी सरकार जोड़ा है। लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए इस 10 साल में तेलंगाना में नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के विषय पर, नेशनल हाईवेज के विकास पर केंद्र सरकार तेलंगाना में खर्च किया है। महकमे इंसदाद रिश्वस्तानी के अहदेदारों ने हफ्ते को कालेश्वरम लिफ्ट ऑर्गेशन स्कीम के साबिक चीफ इंजीनियर हरिराम भुकैया से दूसरे दिन भी पूछताछ की। एसीबी ने गुज़िश्ता रोज उनसे तफसीली पूछगछ की थी, जिसमें उनसे माली बेज़ाब्तगियों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुताल्लिक़ सवालात किए गए। ज़राए के मुताबिक जांच में कुछ अहम दस्तावेज़ात और शवाहिद सामने आए हैं, जिनकी बुनियाद पर पूछगछ का दायरा मज़ीद वसी किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हरिराम से की जा रही पूछगछ शफाफियत और क़ानूनी दायरे में की जा रही है।
تلنگانہ کے منچلیا ضلع کے اندوگولا پیٹ گاؤں کے قریب واقع رائس ملوں کے سامنے بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ خریداری مراکز سے لائی گئی دھان کی بوریاں لاریوں سے اتارنے میں مزدوروں کو شدید قلت کے باعث تاخیر ہو رہی ہے۔ گاؤں کے قریب موجود 3 رائس ملوں کے سامنے ہر مل پر 40 سے 60 کے درمیان لاریوں کی قطار لگی ہوئی ہیں جو دھان اتارنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ ڈرائیور نے کہا ہے کہ یومیہ تقریباً 20 لاریوں کی دھان ان ملوں میں پہنچ رہی ہے، تاہم صرف 10 لاریوں کی ہی دھان اتاری جا رہی ہے، جس کے باعث باقی گاڑیوں کو کئی دن سڑکوں پر ہی رکنا پڑ رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر اور سری سلیم ڈیمز پر انحصار کرنے والے علاقوں کو پینے کی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ دونوں ذخائر میں ملا کر اس وقت صرف 15 TMC فٹ پانی ہی دستیاب ہے، جبکہ ضرورت تقریباً 25 TMC سے زائد ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ KRMB نے پانی کی تقسیم کے لیے پیر کو 3 ممبر کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں ریاستوں کو خط بھی بھیجا گیا ہے۔ ذخائر خشک ہونے کی وجہ سے تلنگانہ کو پینے کے پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ سری سلم سے محبوب نگر سمیت 7 اضلاع کی ضروریات پوری کرنی ہے، جبکہ ساگر پر حیدرآباد، نلگنڈا اور کھمم جیسے اضلاع کا انحصار ہے۔ مئی اور جون کے مہینوں میں تلنگانہ کو دونوں پروجیکٹ سے پینے کے پانی کے لیے تقریباً 12 سے 15 TMC کی ضرورت ہے، لیکن دستیاب پانی اس سے کہیں کم ہے۔ ذخائر میں پانی نہ ہونے کی صورتحال کے بعد اس پانی کے سال میں پہلی بار 3 ممبرز کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ 5 مئی کو جلاساویدھام میں اجلاس ہوگا، جس میں دونوں ریاستوں کی ضروریات اور دستیاب ذخائر کے مطابق پانی کی تقسیم پر بات چیت ہوگی۔ تلنگانہ کے رنگریڈی ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حیدرگوڑے کے حدود میں ایک جوڑے نے ہارپک پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ رمیش اور راجیشوری نامی میاں بیوی نے ہارپک پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ ان کے ارکان خاندان نے فوری طور پر دونوں کو اسپتال منتقل کیا۔ علاج کے دوران راجیشوری کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق ہارپک پینے کے باعث پیٹ اور آنتیں جھلس گئی تھی۔ راجیشوری کے شوہر رمیش کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ جوڑے نے مالی پریشانیوں اور صحت کے مسائل کے باعث یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ راجندر نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں کم عمر لڑکے کو ایک خاتون نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق 16 سال کا لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے حال ہی میں 10ویں جماعت مکمل کی ہے۔ کچھ دنوں سے لڑکے کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور افسردہ تھا، جس پر اس کے والدین نے لڑکے سے تفصیلی بات کی۔ انہیں معلوم ہوا ہے کہ لڑکے کو محلے کی خاتون نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد والدین نے جوبلی ہلز پولیس سے خاتون کے خلاف شکایت کی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ اندرما ہاؤسنگ کے تحت تعمیر کیے جا رہے مکانات معیاری ہونے چاہیے، ریاستی وزیر پی سرینواس نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے بنجارہ ہلز میں غیر مجاز طور پر قبضہ کی گئی سرکاری اراضی کا کیا معائنہ، فوری اقدامات کرنے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور حکومتی اسکیمات کی عمل آوری میں مصروف۔ کالیشورم پروجیکٹ اسکیم کے سلسلے میں ہنوز تحقیقات جاری، ACB نے سابق چیف انجینئر سے کی پوچھ تاچھ۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।